this is the question number 1. So what it will be, anybody? So based on the ideal end member formula of the diapside, here the one thing is very important, that is the formula of the diapside. If you know the formula of the diapside, so there is no problem. You can easily calculate all the things. What is the formula of the diapside? Anybody? Anybody? What is the formula of the diapside? CaMgSiO3. CaMgSi2O6. SiO3 whole 2, or you can say CaMgSi2O6. See, in these cases most of the students will be confused. CaMgSiO2 SiO3 भी अगर करेंगे तो in these cases the same thing is also going to be happen. Okay, but CaO तो फिर CO यहाँ पे देखो, if you are just trying to break, if you are just trying to take CaMgSiO3, so it is not the complete. तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ideal end member. Okay, okay. So in this cases, what is the problem? When you are just trying to break into the this formula into the oxides, तो वहाँ पे क्या होगा? तो you will get CaO, you will get MgO, and you will get SiO2. But the problem is that you are unable to find how many moles of CaO, how many moles of MgO, and how many moles of SiO2 is assembled in order to form the diapside. So in that cases there will be some problem. So always try to remember the ideal formula. So what is the ideal formula? The ideal formula is CaMgSi2O6, और simply आप ऐसे भी ये कर सकते हैं कि CaMgSiO3 whole 2. Okay, so in these cases, तो इसको अगर simplify करें तो what is the 25%. Yes, that is the correct answer, but let me explain for others who are not getting it. So this one. Okay, so if you are going to break, then what will be 1 mole of CaO. Okay, then again 1 mole of MgO. Then how many moles of SiO2? Anybody? 2 moles. 2 moles of SiO2. Okay, तो what is asked here? The mole percentage. समझ में आ रहा है ना? तो व्हाट इज द मोल परसेंटेज हियर? तो देखो, अगर ये वाला टर्म्स आपको कंफ्यूज कर रहा है कि मोल प्रोपोर्शन कैसे निकालें, ये सिंपली अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें, इफ़ यू अगर मान लेते कि आप 3 फ्रेंड्स हैं, ओके, तो आपके पास स्ट्रक्चरल जियोलॉजी मान लेते हैं, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बुक आपके पास एक है, दूसरा फ्रेंड के पास, फ्रेंड 2 के पास उसके पास 2 है, फ्रेंड 3 के पास 4 है, ठीक है। तो अभी अगर उसको पूछा जाएगा कि फ्रेंड 3 के पास और थर्ड फ्रेंड के पास जो स्ट्रक्चरल बुक्स हैं, जितने भी नंबर है, उसका परसेंटेज क्या है, तब कैसे निकालते हैं? 4 डिवाइडेड बाई होल, दैट मीन्स 4 + 2 + 1, दैट इज 7 × 100. द सेम थिंग इज हैपेंड हियर. तो यू जस्ट हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ SiO2 is here, how many moles of CaO is here, how many moles of MgO is here. Then we are just trying to find out the mole proportion that is in percentage for the CaO. Okay, CO the total mole कितना हो जाएगा? How many numbers of moles total? Anybody? 2 + 1 + 1, there will be 4. Okay, तो CO के पास कितना है? 1 है. Then what is the proportion of the CO mole? Anybody? That is 1/4 into 100. और simply अगर इसको लिखें, the number of moles of CaO डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल. जितने भी यहाँ पे ऑक्साइड्स होंगे तो उनका नंबर ऑफ मोल को आपको समेशन करना है. टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ओके, तो व्हाट इट विल बी 1/4 into 100. तो यू गाइज नो व्हाट इज 1/4, दैट इज 0.25 into 100, दैट इज योर 25%. Anybody has any problem in this question? I don't think there will be any problem. Okay, so this is the simple. If you know the formula of the diapside, and don't write CaMgSiO3 because that is not the correct one. So that's why it is written that ideal end member. So you just have to put CaMgSiO3 whole 2 या फिर simply CaMgSi2O6. Okay, ओके. सो मैंने कल भी बताया था कि कैसे बैलेंस करें इक्वेशन या फिर ऑल दी थिंग्स. तो इसलिए पहले जब भी कोई इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है ना न्यूमेरिकल में, जस्ट ट्राई टू चेक फास्ट कि होदर दैट इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट. सो बाई हुईच यू विल प्रोसीड फर्दर. अदरवाइज अपने कर चुके होंगे या फिर सब कुछ कैलकुलेशन कर चुके होंगे, बस थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से आपका 2 नंबर घट जाएगा या फिर 1 नंबर घट जाएगा, तो डायरेक्टली IIT बॉम्बे से आ जाएंगे ISM धनबाद या फिर आज पर योर कैटेगरी. ओके, सो देयर इज अ सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सब के लिए करते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं करेंगे. तो ओके, सो यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द आइडियल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डोलोमाइट. एनीबडी, व्हाट विल बी द आइडियल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डोलोमाइट? एनीबडी हु हैज एनी आइडिया क्या होगा?
देन उसके बाद आपको क्या निकालना है, दी वेट प्रपोर्शन। देखो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे मोल्स दिया गया है, यहाँ पे वेट दिया गया है। एंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट मोल्स इनटू द वेट वी हैव द मॉलिक्यूलर वेट। सो आपको सिंपली क्या करना होगा, वही नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट के साथ मल्टीप्लाई करके तो फिर वेट निकालना होगा। तो फिर ये तो हो गया वेट किसका, MgO का। तो फिर और भी जितने वहाँ पे होंगे ऑक्साइड्स दैट इट इज़ रिटन हियर MgO, CaO, CO2, उसका भी मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। देन फ्रॉम द डोलोमाइट द फर्स्ट स्टेप इज दैट इफ यू नो दी व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डोलोमाइट देन यू विल राइट दैट इज CaMgCO3 whole 2. Okay, so you know, and from this formula you will find out how many moles of MgO, how many moles of CO, and how many moles of CO2 is present there. Okay, so you know what are the numbers of moles and the oxides also. Then what will happen, you will find out the total weight. Weight percentage कैसे निकालते हैं, तो simply the number of moles of किसका निकाल रहे हैं, MgO का, the number of moles of MgO, okay, into the molecular weight of MgO. तो ये किसका वेट दे देगा, दिस इज गोइंग टू गिव यू द वेट ऑफ MgO इन दैट फॉर्मूला। ओके, देन उसके बाद टोटल वेट, टोटल वेट, ठीक है, टोटल वेट मतलब MgO, CO, CO2 का जितने भी वेट है टोटल, तो उसको निकाल लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इट इज आस्क्ड इन परसेंटेज, यू विल जस्ट ट्राई टू मल्टीप्लाई 100 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, सो प्लीज लेट मी नो तो व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो इन केस ऑफ द CA, इसको ब्रेक कर देते हैं सिंपली, CaMgCO2O6, ओके। और अगर सिंपली हम यहाँ पे लिखें ऑक्साइड्स तो CA होगा, MgO होगा, then CO2. Then how many moles of CO is here? Anybody? 1 mole. 1 mole. How many moles of MgO? CO is here. 1 mole. MgO कितना होगा? 1 mole. CO2 कितने मोल का होगा? 2 mole. 2 mole. Okay. Then how many total moles is here? There is 4, but that is not required. Okay. Okay. तो what we are going to do? We have to find out इस सबका हमको वेट निकालना होगा, ताकि तो हम सबको समेशन करके टोटल वेट निकाल सकते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू फॉर दी 1 CaO। तो CO का मोलिकुलर वेट कितना है, एनीबडी? 56। गेटिंग माय पॉइंट ना, 56 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल इज बेसिकली 56 ग्राम। तो 1 मोल यहाँ पे है, तो उसका मतलब क्या है, 56 ग्राम। तो MgO का 1 मोल सिंपली यहाँ पे मोलिकुलर वेट के साथ सेम हो जाएगा, बिकॉज इट इज द ग्राम पर मोल। ओके, तो MgO का कितना है, एवरीबडी इज गेटिंग ना, दैट इज 40 ग्राम। ओके, एंड व्हाट इज CO? 1 मोल CO2 का मोलिकुलर वेट कितना है, 44 ग्राम। ओके, देन 2 मोल का कितना होगा, 88 gram. Then what is the total weight, anybody? 56 plus 40 plus 88. 56 plus 40, that will be 96, I think. 96 plus 88. 8 plus 6, that will be 4. 1. 8 plus 5, 13 plus 14. I think 144. Is it correct or it is wrong? 6, 6, 4, 1. So 184. 184, sorry. 184 gram. Okay, so this is the total weight. Okay, and you know what is the number of moles here for the MgO, that is 1, and what is the molecular weight of the MgO, that is 40. So what is the weight percentage, 40 gram. Okay, this is the weight of the MgO, and what is the total weight, 184 gram. Okay, then simply into 100. So what it will be, anybody? 21%. 21.74. हाँ, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सो प्लीज रिमेंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, सो 40 डिवाइडेड बाय 184, तो दैट इज इंटू 100, दैट इज 21.74 या फिर 73। यहाँ पे राउंड अप कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो द रेंज विल बी देयर 21.74। Okay, so this one the correct answer. Anybody has any problem in this question कि how to find out the weight percentage, mole percentage? तो simply जो भी फार्मूला है या फिर जो भी इक्वेशन वहाँ पे होगा, कभी कभी क्या होता है कि ओलिविन का ऐसे Fe Mg, पहले Mg आता है SiO4, ठीक है। तो इन दिस केसेस वी नो ये कंबाइन करके 2 होगा। कभी कभी क्या करेंगे, यहाँ पे 0.2 दे देंगे, यहाँ पे 1.8। तो इन दैट केसेस यू नो व्हाट इज दी number of moles of the FeO is combined here, that is 0.2. So in this way you can find out all the things, that will be no problem. Okay, so I'm jumping into the next question. This is a very simple one. You guys already know what is the formula to find out the phi from the diameter of the sediment particle. Anybody?
log 2d. 5 into minus log 2d base 2. हाँ, नेगेटिव Minus 2 negative log of base 2 of d. d is basically diameter. in millimeter. हाँ, वेरी गुड. तो ये वाला याद रखना, मतलब वो फार्मूला तो सब कुछ याद कर लेंगे, बट ये याद रखना कि d is basically the diameter of the sediment particle and that is measured in mm. Okay, because I have a question related to that after this question. Okay, then what will be the thing here? Diameter यहाँ पे कितना है? 4 mm. ओके, तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस लॉग बेस 2, यहाँ पे d 4 mm है तो mm को ये सेटिस्फाई कर रहा है, डायमीटर भी है तो दैट बी नो प्रॉब्लम, सो यू कैन डायरेक्टली पुट 4. ओके, देन व्हाट विल हैपन, सिंपली इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस लॉग बेस 2 4 को ये सिंपली माइनस, ये 2 आएगा तो माइनस यहाँ पे है तो, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सो दिस टर्म इज बेसिकली 1. ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, इट विल बी minus 2. ओके, सो द आंसर विल बी -2. ओके, एवरीबडी इज गेटिंग ना. तो ये लॉग वाला भी एक टर्म है. इफ यूर गाइज आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस लॉग फॉर कैलकुलेशन ऑल दी थिंग्स, जस्ट गूगल. ओके, थोड़ा सा गूगल कर लो, आपके पास एक चार्ट आ जाएगा. ओके, सिंपली वो प्लस माइनस वो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन वाला, तो उसको थोड़ा सा कर लेना, और थोड़ा सा एलएन का भी. ओके, तो नेचुरल लॉगरिथम का थोड़ा सा कर लेना, तो इट विल बी मच मोर इजियर. देयर इज नॉट, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है तो मेक ए चार्ट एंड जस्ट फिक्स ऑन योर वॉल. ओके, सो इट विल बी मोर हेल्पफुल. ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 29. इमेजिन हमने बस 1 साल का किए हैं, तो वी हैव ऑलरेडी सीन 28 नंबर ऑफ सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो मेरे को लगता है कि जब तक ये ख़त्म होगा, ये सेशन मतलब ये सीरीज़ जो चल रहा है अभी, जब तक ख़त्म हो जाएगा 2023 के में जाके, तो यू विल गाइज आई थिंक अराउंड आपको 200 या फिर 150 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यू विल फाउंड. Okay, so here is a question for you guys. So the phi value is already given for a gravel, and can anybody let me know what is the sequence? Where to जो मतलब grain scale है, what is the scale? So 0.3. This is 29. No, it's not that much. It is much more bigger. Okay, so we'll see. But what is the sequence? Boulder, Cobble, pebble, Granule, sand, slate. very good. Boulder, cobble, pebble, granule, sand, slate, clay. ठीक है, तो सैंड का कितना है 2 to 1/16, स्लीट का 1/16 to 1/, यहाँ पे आ जाएगा 1/256. ओके, जो कि 2 to the power 8 है. देन उसके बाद यू कैन इजीली फाइंड आउट. ओके, सो देयर विल नो प्रॉब्लम. थोड़ा सा ये भी जब कुछ भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हो ना, तो थोड़ा उसका रिलेटेड थ्योरी भी कर लेना. ओके, सो एनीबॉडी हु इज रेडी विद द आंसर? 6.4. So 12.8. Yes, that is 12.8. Very good. So who is it? So 12.8. Critical, sir. Kritikan, na? Okay, 12.8. 12.8 is the correct one. So here I have changed 2 things. First thing is that I have asked in centimeter. Okay, always we calculate it in mm, so that thing you should remember. And second thing is that it is given as radius. We always do for the diameter. ये दोनों चीज़ अगर आपने नोटिस कर दिए क्वेश्चन से, then you can easily do all the things. Okay, so let's do it. How we are going to do? And what is the formula for the phi? We guys already know negative logarithm of base 2 of d. D is in the mm. And this is the diameter. Okay, don't forget that. Okay, so what I'm going to do, okay, तो यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं डायमीटर को mm में, ताकि फिर हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकें. दैट विल बी मच मोर ईजियर. ओके, तो व्हाट इज गिवन एज -8, तो phi हमारे पास -8 आ गया, तो यहाँ पे माइनस log 2. ओके, देन d इन डायमीटर इन mm. ओके, तो ये नेगेटिव इज गोइंग टू बी कैंसल्ड. ओके, देन उसके बाद वी विल गेट 8 is equal to log 2d. Okay, then what will be the d? Anybody? 2 to the power 8. 2 to the power 8. Very good. 2 to the power 8. So it will be 256 mm. Okay, यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, नहीं तो यू विल बी इन ट्रबल. ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट बिकॉज वी नीड इन सेंटीमीटर. सो वी नीड इन सेंटीमीटर. सो हम क्या करेंगे, अभी इसको mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो हाउ मच इट विल बी 25.6 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज डायमीटर, बट व्हिच इज जो कि हमको नहीं पूछा गया है. हमको क्या पूछा गया है, रेडियस. तो क्या करेंगे, उसको सिंपली डिवाइड बाई 2 कर देंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट आवर आंसर. तो ये क्या हो जाएगा 25.6 डिवाइड बाई 2, इट विल बी एनीबडी
25 हो जाएगा 12.5, 6 हो जाएगा 0.3, 12.8 सेंटीमीटर. 12.8. So this is the correct answer. Okay, so see the questions are nothing, only आपको बस क्वेश्चनर जो जैसे सोच रहा है बस आपको वो उसको पकड़ना है, देन उसके बाद यू विल गेट ऑल द आंसर्स करेक्टली. समटाइम्स इट इज कंफ्यूजिंग बट इट्स ओके, व्हेनेवर यू विल जस्ट ट्राइंग टू प्रैक्टिस 1 or 2 क्वेश्चंस सो यू कैन इजीली डू, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. अगर आपको नहीं हो रहा है आपका तो जस्ट वेट एंड वॉच कि आपका कहाँ पे गलतियाँ हो रहा है, कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ या फिर सोच रहा हूँ कि लेकिन कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जोड़ दीजिए कि मतलब कैसे करके उसको इम्प्रूव करना है. ओके okay, so I'm just coming to the question number 3. So this is the phase rule and we have also done in the last session I think. So what is asked here? So this is calcite, quartz, wollastonite, CO2 fluid. See, sometimes students confuse कि fluid को लें या नहीं लें phase में. तो if you read carefully the winter book तो वहाँ पे आपको directly मिलेगा कि जब कोई fluid phase purely mobile हो तभी हम उसको count नहीं करते हैं. अगर वो purely mobile नहीं है तो हम उसको काउंट करते हैं. सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट रेफर दी विंटर. ओके, तो उसको विंटर को रेफर करके यू कैन जस्ट फाइंड आउट. आई थिंक एमके बॉस में थोड़ा सा क्लियरली मेंशन है या नहीं है मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट यू कैन इजीली फाइंड आउट इन द विंटर. ओके ओके, एनीबॉडी हु इज रेडी विद द आंसर? व्हाट इज आस्क्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाँ क्या? Sir, 1. 1. 1. Yes, 1. Everybody is getting 1, na? 1 is the correct answer. How? Because if you are trying to see what is the phase rule, anybody? So this is not the Minus this is the N phase. plus C plus 2. हाँ, F is equal to C minus I plus 2. तो phi is basically phase, C is the number of components and 2 is the intensive properties. Okay, and F is the degree of freedom. तो what is asked here? Degree of freedom is asked. तो F is equal to component कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3. तो 3 माइनस यहाँ पे 5 कितने हैं, मतलब phases कितने हैं? 4. 3 minus 4 plus 2. तो ये कितना हो जाएगा? 3 plus 2 5 minus 4, that will be 1. Okay, so the answer will be 1. I am going little bit faster. Why? Because I have to complete all the 10 questions and the similar practice questions. So that's why within 1 hour, because I am not going to take much more of your time. Okay, so because these are the previous questions आपने पहले भी किए होंगे तो इतना भी डिफिकल्टीज नहीं होगा. जो भी होगा डिफिकल्टी जो सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में होगा. ओके, सो आई थिंक एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? इफ एनीबडी हैज प्लीज लेट मी नो. Okay, so this is the question number 30, similar practice question. How many phases will coexist? Same type of question is asked in the previous section. I just modified something, so you will find out what is modified here. Okay, how many phases will coexist on a bivariant field in an isobaric phase diagram of a ternary system? Anybody? Bivariant field means F is equal to anybody? 2. Isobaric means ये जो 2 था C plus रिड्यूस हो जाएगा 1 हो जाएगा. टर्नरी सिस्टम मीन्स कंपोनेंट विल बी 3. तो व्हाट विल बी दी 2. आंसर? Answer is 4. नो, आंसर इज 2. व्हाई? बिकॉज हाँ, इफ Sir, answer is 2. क्या? Age is 2, sir. हाँ, आंसर इज 2. तो एफ इज इक्वल टू 2, कंपोनेंट इज बेसिकली 3, 3 minus 5 is asked plus 1. तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर द 5? 5 will be 3 plus 1 minus 2. So it will be 2. Okay, the answer will be 2. Everybody is getting ना? Is it interesting? और थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन लेवल इतना भी अच्छा नहीं है? हेलो, या फिर मेरे को और भी थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाना चाहिए? बिकॉज दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, सो आई थिंक थोड़ा सा सिंपल रखना चाहिए, नहीं तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि 1 मार्क और 2 मार्क में. सो दैट्स वाई मेक दिस क्वेश्चन मच मोर सिंपलर. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. सो यू हैव ए वेट ऑफ ए 10 centimeter cube medium grained sandstone block with 20% porosity. ड्राई स्टेट में उसको अगर मेजर करेंगे तो 26 ग्राम हो रहा है. अगर फुल्ली सैचुरेटेड है तो उसका डेंसिटी क्या होगा ब्लॉक का? हाउ टू डू इट? एनीबडी? सर सबसे पहले हम लोग ड्राई डेंसिटी निकाल लेंगे पोरोसिटी वेट का, सॉरी पोरोसिटी का. देन आफ्टर फुल्ली सैचुरेटेड के लिए होता है मास बाय वॉल्यूम, तो हम कर देंगे तो आ जाएगा. that is another way, but the much more simpler way is that if you are just trying to take a block, okay, तो आपको सिंपली एक ब्लॉक लेना है. तो ब्लॉक केसेस में क्या होगा? दिस इज 10 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे पोरोसिटी कितना है? दीज आर दी पोरोस थिंग्स. ओके, तो यहाँ पे पोरोसिटी कितना है? 20%. ठीक है, तो 20% मीन्स हाउ मच वॉल्यूम इट इज?
2 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज 10 सेंटीमीटर इज द होल, होल का 20% 2 सेंटीमीटर क्यूब इज द पोरस। ओके, तो ये जो यहाँ पे सॉलिड्स हैं तो इनका वेट कितना है 26 ग्राम। ओके, तो 26 ग्राम अगर फुली सैचुरेट करें तो ये 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना वाटर ऐड हो सकते हैं? एनीबडी? 2 gram. 2 ग्राम, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज बेसिकली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 2 ग्राम यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो पहले क्या था 26 ग्राम, तो ये टोटल ब्लॉक का वेट कितना हो जाएगा 28 ग्राम। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल 10 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द फुल्ली सैचुरेटेड ब्लॉक? वेट बाई मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्यूब, 2.8. द आंसर विल बी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंपली आप इसको भी कर सकते हैं, मतलब सिंपली एक सोच के, या फिर इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो आपको अगर आप 2-3 बार कर लिए ना इसी टाइप का क्वेश्चन तो यू कैन इजीली डू दैट। बट जो विक्रम ने बता रहे थे कि इसको कैसे करना चाहिए, तो मिनरल डेंसिटी निकालना है, तो बॉल डेंसिटी निकालना है, वी हैव पोरोसिटी, बट इन दैट केसेस यू विल फाउंड दी समथिंग रॉन्ग। आई हैव ट्राइड कि वो मेथड क्यों नहीं वर्क कर रहा है, बट जब फुली सैचुरेशन होता है तो इन दैट केसेस दिस फार्मूला डज नॉट वर्क। ठीक है, यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ अनदर फार्मूला, और आपके पास कुछ अगर डाटा है तो खुद भी बना सकते हैं, तो उसको करके देखिए, तो दिस फार्मूला इज नॉट गोइंग टू वर्क, बट दिस इज द परफेक्ट मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, सो लेट्स सी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। Hello, sir. हाँ Can you explain that 2 cm? see, we have a block that is 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वहाँ से हम ये बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक का 20% पोरस है। ठीक है, तो मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब का 20% पोरस है, तो मतलब कितना पोरस वॉल्यूम है यहाँ पे 10 इंटू 0.20। हेलो, यू आर गेटिंग ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, simple thing. Okay, हाँ. We have a question. In that question, a 590 gram weighted porous medium having a volume of 250 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्टेड किया गया है। ठीक है, इज वेटेड 6,150 ग्राम आफ्टर फुल सैचुरेशन। तो सिंपली यहाँ पे क्या गया, वेट ऑफ ड्राई, तो ड्राई केसेस में कितना था 590 ग्राम। वेट व्हेन द फुल्ली वेट ऑफ द ब्लॉक व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड, तो ये कितना हो गया 615 ग्राम। तो अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कितना होगा, कितना वाटर ऐड हुआ फुल सैचुरेशन के हिसाब से, कितना So 25. 25 ग्राम। ओके, तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 250 So 0.1 answer. आंसर 0.1 नहीं है, तो 10 आपने 10 होगा। कैलकुलेट किए, ये परसेंटेज वाला छोड़ दिए। इट्स ओके, यू कैन रेक्टिफाई इन द नेक्स्ट। ओके, तो दिस 25 ग्राम ऑफ वाटर इज बेसिकली गोइंग टू ऑक्यूपाई हाउ मच वॉल्यूम एनीबडी 25 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज द डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो दिस इज बेसिकली व्हाट वॉल्यूम ऑफ void, then what is porosity, volume of void by volume of total, तो 25 divided by 250 into 100, तो ये कितना आ जाएगा anybody 10%? गेटिंग माय पॉइंट Yes, ना? sir. तो दिस क्वेश्चन इज, मतलब ये ऐसा लिखा गया है कि एक ही सेंटेंस में, बट इट कैन बी, मतलब थोड़ा सा उसको मतलब ब्रेक करके आप 3-4 सेंटेंस भी कर सकते हैं, जैसे कि द वॉल्यूम ऑफ द पोरस मीडियम इज बेसिकली 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो इन द ड्राई weight of the porous medium is 590 gram, तो all the things you can just break those things. okay अगर ये नहीं करेंगे तो फिर मतलब जाम क्वेश्चन का कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा। अगर डायरेक्टली दे देगा ना कि ये दिया गया है करो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक सब कुछ कर लेंगे, तो यही तो प्रॉब्लम है कि आपको क्वेश्चंस से डाटा निकालना है, तो इन्हें उसके बाद उसको प्रोसेस करके यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज ए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, एंड ये एक ही बार पूछा गया था, देन उसके बाद ये ना गेट में पूछा गया है ना जाम में पूछा गया है, बट स्टिल आई डिड दैट वन। ओके, सो व्हाट हैपेंड हियर, द थिंग इज दैट समटाइम्स ये कुछ बुक में 130 आंसर आया है, लेकिन जाम आंसर की में 140 आया है, बट विच वन इज द करेक्ट? सो I think there is two method. One is that जाम में जो आंसर दिया गया है
दैट इज एज पर दी जियोलॉजी, दैट मीन्स एज पर दी स्टेनोस लॉ। ओके, हमको जो 130 वाला आंसर मिल रहा है तो दैट इज बेसिकली ऑफ द जियोमेट्री। ठीक है, देन यू विल से सर दीज आर नॉट द रिलेटेड थिंग्स, स्टेनोस लॉ जियोमेट्री को ऊपर बिलीव नहीं करता, यस करता है, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं ओरिएंटेशन के वजह से, सो दैट्स वाई देर इज द डिफरेंसेस इन द क्वेश्चंस। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे 3 फेसेस हैं, तो फर्स्ट फेस इज बेसिकली यू कैन सी फ्रॉम द HM सिंबल, दिस इज नॉट HM सिंबल, ये क्या है, मिरर इंडेक्स। तो मिरर इंडेक्स इज नॉट 1, नॉट 2 1, नॉट 1 नॉट, 3 फेसेस हैं। तो आपको क्या पूछा गया है स्टेनोस लॉ के हिसाब से, एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज स्टेनोस लॉ, कंसिस्टेंसी ऑफ एनीबडी, सेल एंगल, Interfacial angle. व्हाट इज द इंटरफेशियल एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन, Two axial plane. नो, इट इज द एंगल बिटवीन, Two adjacent faces are constant. हाँ, तो ये सिंपली 2 फेसेस लिखा हुआ है कुछ कुछ बुक में, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, 2 नॉर्मल्स फ्रॉम द एडजेसेंट फेसेस, गेटिंग माय पॉइंट ना, तो दैट इज द इंटरफेशियल एंगल। ओके, तो दैट इज नॉट आवर पार्ट, बट व्हाट वी आर गोइंग टू सी, if you are trying to see what is asked here, we have 2 plane, that is not 1 and not 2 1 with a goniometer that is 40 degree, that is the exterior angle। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, दिस वन इज द इंटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर, दिस इज इंटीरियर। ओके, तो आपको एक्सटीरियर एंगल कितना मिला, एक्सटीरियर एंगल आपको मिला 40 डिग्री। ओके, तो इफ यू ट्राइंग टू सी दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, एनीबडी, 140, 140. ओके 140। इफ यू ट्राइंग टू सी दिस नॉट 1, ओके, तो मतलब ये कौन सा फेस है, इफ यू ट्राइंग टू सी दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो व्हाट इज द फेस हियर, इट इज बेसिकली गोइंग टू इंटरसेक्ट ओनली व्हिच फेसेस, C axis. तो इट इज जस्ट लुक लाइक दिस। ठीक है, तो व्हाट इज दिस वन, इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट ओनली बी। ओके, तो देर इज सम फेसेस लाइक दिस, इनके बीच में जो फेसेस है तो इसको ये नॉट 2 1 है, तो ये सिमिलर ऐसे है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ड्रा किया है। ओके, तो आपको ये पूछा गया है दोज फेसेस आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू द क्रिस्टल ग्राफ एक्सिस, तो उसका जो नॉर्मल होगा, द नॉर्मल दे आर ऑल्सो गोइंग टू मेक 90 डिग्री, everybody is getting na, because the crystal graph axis orientation you guys know they are mutually perpendicular to each other। okay, so this is basically common कि ये क्यों 90 डिग्री होगा, I think you guys got it कि क्यों 90 डिग्री होगा। okay, तो what is happened here, तो this is a geometry and in this cases the exterior angle, तो जितने भी यहाँ पे एंगल्स हैं तो उनको कैसे मेजर किया जाता है, उनका समेशन, जैसे कि in case of the triangle what is the sum of all angles, anybody, 180. 180. 180, स्क्वायर केसेस में कितना होता है, 360. 360, हम कैसे करते 360. हैं, दैट इज बेसिकली n-2 इंटू 180, तो ये आपको जितने भी सब्सक्राइब्ड जो भी भीतर जितने भी एंगल्स हैं उनका समेशन देता है। n मीन्स द नंबर ऑफ साइड्स, जैसे कि इन केसेस में 3 है, 3-2 इंटू 180 दैट इज 1 इंटू 180 दैट इज 180। इन दिस केसेस इट इज 4-2 इंटू 180 इट इज गोइंग टू गिव यू। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट देयर इज हाउ मेनी साइड्स, 1 2 3 4 5। ओके, देन व्हाट विल बी द टोटल एंगल, 5-2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 540। 540. okay, everybody is getting na, okay, so I'm just erasing all the things। okay, तो 540 हमको चाहिए, ठीक है, एंड ये हो गया हमारा 140, तो दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, तो 90 90 90 कितना हो गया, 270, तो 540 माइनस 270, ठीक है, ये कितना आएगा, एनीबडी, कितना आएगा, 540 माइनस 270, 270, तो 270 से 140 इज ऑलरेडी गिवन हियर एंड इट इज आस्क्ड, तो ये कितना होगा, 130। ठीक है, दिस इज वन पर्सपेक्टिव। अनदर पर्सपेक्टिव इज दैट द स्टेनोस लॉ। ओके, तो ये वाला सर ये वाला जरा बताना, मतलब वो n-2 इंटू 180 कैसे हुआ, और दिस इज बेसिकली ये जितने भी एंगल्स हैं उनको मेजर करने के लिए, अगर ये ट्राइंगल है तो जितने भी सब्सक्राइब्ड जो भीतर जो एंगल हैं तो उनको सब ये समेशन कितना होगा, तो 180 कैसे होता है, तो एज पर दिस फार्मूला। अच्छा अच्छा, okay, if you are trying to take for the hexagonal, so you can just find out this is a pentagon because there is 5 sides, so we are getting 540. okay, so this is as for the geometry, but what the Steno's law say कि the angle in between the two adjacent faces, or you can say in a crystal, in the same crystal, the angle in between the
faces is basically same. Okay, so that means this is 40. Okay, so that means it is 140. getting my point ना. The same thing, जैसे कि अगर आप देखें, this is the straight line, this is also the perpendicular to the perpendicular to the b axis. Okay, so this angle is also going to be 40. So as per this, the interior angle will be 140. ठीक है, तो ये है जाम का एक्सप्लेनेशन. ठीक है, जाम के हिसाब से एज पर दिस स्टेनोस लॉ it is going to maintain the constancy in interferential angle, so that's why it is 140. The angle between not 1 and not 1 140. So the angle between not 1 and not 10 is basically 140. Okay, so this is the controversial question, so that's why I don't have any question similar practice question like that, but there is one in our practice section, there is one regarding that. In that cases the interface हाँ. If this type of question are coming, then two type of answer are coming. Then which one is correct, sir? सी सो ये तो आज तक जितने भी किए गए हैं अभी तक तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं आया है. कि देखो देयर इज अनदर मेथड ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस वन. ओके, ये इसको अगर एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या होगा, दिस इज़ 40, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ 40, तो ये व्हाट इट इज़ 50, तो फिर ये आ जाएगा 130. ठीक है, तो जियोमेट्री के हिसाब से आप कैसे भी करो आपको 130 मिलेगा, लेकिन आप स्टेनोस लॉ अगर कंसिडर करेंगे तो 140. बट एज पर माई सजेशन, तो हम जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जियोमेट्री के हिसाब से कहीं पे भी कुछ गलतियां हो सकते हैं, जैसे कि ये ओरिएंटेशन के हिसाब से, बिकॉज इट इज़ नॉट मेंशन दैट इट इज़ 90. ठीक है, तो जहाँ अगर आप कंप्लेन करोगे तो आपको ये बोलेगा कि मैंने तो यहाँ पे बताया नहीं कि ये 90 है, तो फिर आप एक्सप्लेनेशन दिखाओगे कि ये वाला एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैंने दिखाया. तो इन दैट केसेस द मोस्ट प्रोबेबिलिटी केस इज दैट वेदर इट इज़ दी हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम और वेदर इट इज़ दी अदर क्रिस्टल सिस्टम, बिकॉज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में 3 आते हैं, तो फिर वो बोलेगा कि मैंने यहाँ पे साइलेंट रखा है, मतलब यहाँ पे 0 हो सकता है. तो देर इज मेनी केसेस. ओके, सो दैट्स वाई आई विल टेल दैट इफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस केम ऑलवेज फॉलो द स्टेनोस लॉ. ओके ओके, I don't have any similar practice questions for that because that is a controversial question and I don't want to disturb your minds also. Okay, so this is question number 6. Anybody, how to do that? We have a wave cut platform, that means ये अगर मान लो कि ये waves हैं, ठीक है, these are the waves, all are the green color, blue color. Just a second. Okay, these are the ocean waves. ओके, तो आपको ये बोला गया है कि दी सरफेस, ये जो यहाँ पे जो सरफेस है, ठीक है, इट इज हाउ मच एलिवेटेड फ्रॉम द मीन सी लेवल, एनीबडी? 55 मीटर अबव द मीन सी लेवल. 55 मीटर. ओके, तो व्हाट इज द एज ऑफ द इरोजनल सरफेस? यहाँ पे जो है उसका एज क्या है? इट इज 120 किलो एनम. किलो मीन्स 10⁻³ सिंपल. 120 किलो. हाँ, 120 क्या? Answer is 0.45. 0.46. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट. ओके, तो आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रॉक अपलिफ्टमेंट, कि मतलब ये तो यहाँ पे पहले नहीं था, तो ये यहाँ पे डिपोजिशन हुआ होगा, ठीक है, सेडिमेंट यहाँ पे डिपोजिट हुआ होगा, देन द अपलिफ्टमेंट ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी हैपेंड, सो दैट्स व्हाई इट इज अबव एंड द वाटर इज देयर. देयर इज मेनी कंसिक्वेंसेस यू विल फाइंड इन केस ऑफ द सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी, कि कैसे यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सी वाटर भी नीचे चला गया होगा, there may be regression, there may be transgression, all the things are there in case of sequence stratigraphy, but we are not going there. Okay, we are simply going to calculate what is the uplement rate. Okay, then that is in meter per kilometer, meter per kilo years. Okay, okay, simple. यहाँ पे किलो ईयर है, यहाँ पे मीटर है, तो सिंपली आप ऐसे निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ अपलिमेंट इज बेसिकली एलिवेशन डिवाइडेड बाय ईयर. ओके, जितने भी ईयर इसको लगा है, तो एलिवेशन क्या है? 55 मीटर डिवाइडेड बाय कितना ईयर है? 120 किलो ईयर. तो इसको मीटर को कन्वर्ट करने का मतलब यूनिट को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज द यूनिट इज बेसिकली इन मीटर पर किलो ईयर. सो सिंपली 55 डिवाइडेड बाय 120. ओके, हाउ मच इट इज? एनीबडी? 0.46. 0.456. दैट इज 0.46. सिंपली 8 है तो 0.46. ओके, 0.46 meter per kilo annum. Okay, anybody has any problem in these questions? I will share the questions. No, don't worry about the questions कि अगर लिख रहे हो तो just try to do all the things in rough. Then अगर आप कुछ notes कर रहे हैं तो you can just do after this session. Okay, so you have a similar practice question. The elevation of inner edge of a wave cut platform. बस थोड़ा सा language में changes हैं, otherwise the things are all there.
वो वहाँ पे 55 मीटर था. इट इज़ एबव 450, इट इज़ 450 मीटर एबव द सी लेवल, एंड दैट वाज डेटेड टू बी रफली 120 किलो annum. व्हाट इज़ द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन सेंटीमीटर. थोड़ा सा जाम के जैसा तो सिंपल क्वेश्चन नहीं देंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे. तो सेंटीमीटर पर ईयर में पूछा गया है. तो हाउ टू डू इट, सिंपली हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं. ये 450 मीटर विल बी 450 इंटू 10 to the power 2 सेंटीमीटर. ओके, then 120 kilo annum is basically 120 into 10 to the power 3 year. Okay, is it clear? Then what is the rate? 37. Rate क्या होगा? 0.375. हाँ, 450 into 10 to the power 2. 0.375. Yes, 10 to the power 3, 0.375. Very good. You have calculated up to 3 decimal places. Okay, so the after that there will be no digit, I think. तो यहाँ पे हम कट कर देंगे. तो 0 is going to be cut, cancelled. 45 divided by 12, 120. 45 divided by 120, इतना ना. 0.375. Okay, so the answer will be 0.375. Okay, this is the rate centimeter per year in